Hi, welcome. If you ask me, out of all these topics that I'm covering, which would be my favorite topic or which is going to be my favorite episode, this is today's. आज का टॉपिक काफ़ी स्पेशल है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये टॉपिक पे बात करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है. रीज़न हमारी इंडियन गे कम्युनिटी अब ये टॉपिक के इर्द गिर्द घूमती रहती है. The whole Indian geek community revolves around these topics and their life starts with this, their life ends with this. What is the topic? Top and bottom. There are a lot of myths, there are a lot of stereotypes. काफ़ी ऐसी बातें हैं जो लोगों ने फिक्स करके रखी है टॉप्स बॉटम्स और इसके आगे दुनिया है नहीं और यहीं से दुनिया शुरू होती है यहीं से दुनिया ख़त्म होती है गे लोगों के लिए. तो आज हम I'll try to break this stereotypes and myths today. सबसे पहली बात, आप टॉप हो बॉटम हो वर्सेटाइल हो आपकी पर्सनल लाइफ है. इट्स योर पर्सनल थिंग. यू डोंट नीड टू tell that thing to everybody screaming, oh yeah, I am this, I am that. No. Whenever I ask somebody to introduce themselves, dating app के ऊपर या social media के ऊपर, when I'm talking to a gay guy, I ask him to introduce, 9 guys out of 10 will tell their sexual position in the introduction. I am this, I am this old, I stay here and I am bottom, I am top, whatever. Why? This is how you introduce yourself in the colleges and school and your new workplace. जब आप जाते हो कहीं काम पे नई जगह पे, जब आप कॉलेज में जाते हो क्लासेस में जाते हो, आप अपने आप ऐसे इंट्रोड्यूस करते हो वहाँ पे? नहीं, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस ऐसे नहीं करते हो. So why specifically you have to think about sex all the time when you're introducing yourself to someone? People directly ask this question, what are you, your top or bottom? आपके बाप का माल है भाई. It's somebody's personal matter, somebody's personal life. You don't have right to interfere in somebody's life and ask them on their face if you're top or bottom. But the saddest thing is that जिसको सवाल पूछा जाता है उसको वो ऑफेंस लगता ही नहीं है क्योंकि उसको भी आदत होती है दूसरों को पूछने के लिए कि वो टॉप है या बॉटम. This is where we have reached as a community, and the maximum people, their life still revolves around top. These questions are often directed to me. लोगों को लगता है कि उनका हक है वो किसी को भी पूछे. तो मेरे YouTube के फिल्म्स के कमेंट में, मेरे Instagram के फोटो के कमेंट पे people directly bluntly ask this, and most of these are fake profile. Fake profiles में ही हिम्मत होती है कि वो ऐसे करे. उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि अपने ओरिजिनल प्रोफाइल से जाके किसी को पूछे कि तुम टॉप हो या बॉटम. Of course, there are people who are blunt, they are shameless, they directly go and randomly. I get so many messages like this. The thing is that if you're so much keen to answer this question, I'm going to answer this because I want to put some more information and knowledge in you today. कि top, bottom, versatile, इसके आगे भी जाके दुनिया है. इसके आगे भी जाके काफ़ी लोग हैं जो अपने आप को इन तीनों में अपने आप को रजिस्टर नहीं करते. वो तीनों भी अपने आप, ये तीनों सेक्शन जो है top, bottom, versatile, they don't find themselves into any of this category. And I am one of those other people. I don't find myself, I don't fit into this category. And what is it? It's called side. SIDE. So generally क्या होता है कि लोग लगता है top, bottom, versatile. So ये बात आती है fucking पे. Okay, and let me just give the disclaimer, okay? लोगों को करने में शर्म नहीं आती, लोगों को पूछने में शर्म नहीं आती, तो मुझे बात करने में शर्म नहीं आएगी. मैं खुल के बोलने वाला हूँ, काफ़ी खुल के लूँगा सबकी जो ये करते हैं उनकी. सबको लगता है टॉप बॉटम वर्सेटाइल मतलब ठुकना ठोकना ठुकवाना, गेटिंग फकिंग पीपल, दैट्स इट, दैट्स ऑल द गे सेक्स इज कंप्लीट. मतलब एनल सेक्स कब तक करते नहीं ना तब तक किसी की लाइफ पूरी नहीं होती. आई डिसएग्री विद दैट. आई एम प्राउड टू से दैट I don't fit into the bill. I am happy with what I am. I'm happy with what you are. The side are the people, SIDE side, who can be anything emotionally, top, bottom, versatile, whatever they want to be, but they don't enjoy anal sex. They don't enjoy getting fucked, nor they're interested fucking somebody. I am a side. Does that mean I never tried anal sex? I tried, but I don't enjoy. And for the last 9 or 10 years, I am a side. I don't enjoy anal sex. They enjoy other part of the things, other part of the sex like body play, oral, everything, but no anal sex at any cost. I am a side. So at least हम लोग सेक्स करते हैं. But sometimes if you find a guy attractive, he said I don't feel like having sex. मुझे सेक्स पसंद नहीं करना. तुम उसको जज करती हो, judge that person saying how can that be possible? It is possible. There's another type called asexuals. उनको emotional attractions होता है. They get attracted emotionally, they connect with you romantically, but
they don't find having sex with they don't find it, you know, worth having sex with anybody. They don't feel attracted physically to the people. So that is one more thing. ऐसे काफ़ी types है. So just ये मत सोचो कि सिर्फ top and bottom है. There are a lot of other people. And do not forcefully put other people in your bracket कि ये top है, ये manly है तो ये top होगा, ये feminine है तो bottom होगा. No. लेट मी टेल यू, ये टॉप बॉटम की जो चिंदीगिरी चलती है ना, सिर्फ हमारे एशियन कंट्रीज में ही चलती है, साउथ एशियन कंट्रीज टू बी स्पेसिफिक. इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, प्रोबेबली श्रीलंका. इफ यू गो टू अदर साइड्स लाइक स्पेशली यूएस और यूके, देयर इट इज़ पॉसिबल टू हैव दिस टॉप बॉटम वर्सेटाइल्स थिंग, बट ये जो रिस्ट्रिक्शंस है ना, जैसे घर के ये काम औरतें करेंगी, घर के ये काम मर्द करेंगे, लाइक सम वर्क वुमेन विल डू, दिस स्पेसिफिक वर्क ओनली मेन विल डू. We gay community are victim of that. We have specified rules and regulations for tops and bottoms. Tops have to do this. Tops can't do that. Bottoms have to do this. Bottoms should not do that. Why? Something basic rule जो बनाया गया है इंडियन की कम्युनिटी में, I don't know कब बना, किसने बनाया, but हम सब ने उसको कैरी किया आगे. वो है कि tops shouldn't suck. Top suck नहीं करता, bottom सिर्फ suck करेगा, and top can rim अगर उसकी इच्छा हो तो. if he finds it okay, if he finds it ew disgusting, then it's okay, क्योंकि bottom हमेशा से victim रहे हैं, just like Indian women have been in the society. और एक top अपने bottom को वैसे ही treat करेगा जैसे उसने अपने बाप को, अपने माँ को treat करते हुए देखा. Simple. हम heteronormative rules follow कर रहे हैं, and which is not so cool. चीज़ ये है कि अगर आप abroad में जाओ तो टॉप भी सक करता है, बॉटम भी सक करता है, बॉटम रिम करवाता है और करता भी है. सेक्स इज एन इक्वल सेटिस्फैक्शन एंड इक्वल जॉय. दोनों को बराबर मज़ा आना चाहिए. एक ही मज़ा कर रहा है और उसको दूसरों को बता रहा है दैट यू डू दिस, यू डू दैट, एंड वन पर्सन इज एंजॉइंग एंड वन इज डूइंग बिकॉज ही इज हॉर्नी, बट एंड दैट्स हिज लाइक यू नो व्हाट, आई हैव टू डू इट बिकॉज इफ आई डोंट गेट सेक्स राइट नाउ आई माइट डाई. That's the problem with lot of bottoms. They say they want मर्द. Bottoms को मर्द चाहिए. उनको क्या फीलिंग आती है, I don't know. That's your personal choice. If you like to be with the perfect guy, and they say a top shouldn't suck. That's your personal choice again. But ये जो stereotypes आप डाल रहे हो ना समाज के सामने, गे समाज के सामने, completely गलत है. One more thing, there is something new breed. They call themselves pure top. Let me just say this very clear. There is nothing pure in this world. आजकल दुनिया में प्योर शुद्ध घी भी प्योर नहीं रहा. तो प्योर टॉप का तो सवाल ही छोड़ दी दो, कुछ प्योर नहीं है. प्योर टॉप का मतलब उन लोग के हिसाब से ये है कि मैं सक नहीं करता, मैं किस नहीं करता, मैं सिर्फ फक करता हूँ, मैं प्योर टॉप हूँ बिकॉज मैं मर्द हूँ. नहीं, ये प्योर टॉप का मतलब तुम्हारे लिए होगा. फॉर मी देयर इज सम डिफरेंट मीनिंग ऑफ प्योर टॉप विच इज एक्चुअल मीनिंग, एंड दैट इज आई हैव माई ओन मैनली ईगो. दैट्स इट. And I can't let anybody break that or clash that ego. But we have to. I want to say this to all bottoms and versatiles or even some tops who prefer to being with tops. Break their ego. Pure tops को entertain करना छोड़ दो. ये यही लोग हैं जो अब हर कोई डेटिंग ऐप पे आप जाओगे, ये हमेशा यही कमेंट करते रहते हैं, स्पैम करते रहते हैं. किसी को अपनी माँ बहन ठुकवानी है, किसी की बहन वाइफ अगर कोई कैंप पे दिखाएगा तो मैं तुमको भी ठोकूंगा, उसको भी ठोकूंगा. I'll fuck her, I'll fuck you. I'll fuck you only if you show me your wife on camera, if you show her nude pictures, if you show her undergarments. So we have reached to that level, and this is the breed that they call themselves pure top. And there are some bottoms who give up to this. किस मिट्टी से बने हो भाई? तुम अपने सेक्स के लिए, अपनी की खुजली मिटाने के लिए तुम अपनी माँ बहन और वाइफ, वो तो अलग मुद्दा है कि तुमने शादी कर ली, वो तो छोड़ो, और तुम उनकी इज्जत दाव पे लगा रहे हो अभी. अनएक्सेप्टेबल. ये प्योर टॉप्स को इजीली गे सेक्स मिलता है ना, इनको गे सेक्स तो उनको लगता है कि लड़कों से सेक्स करेंगे तो उनकी गर्लफ्रेंड्स, गे लोग गर्लफ्रेंड रखते हैं कि यही बड़ा डिबेटल टॉपिक है, इसके लिए और 2-3 एपिसोड बना सकते हैं. एनीवेज, उनकी माँ बहन, उनके चाची मौसी, इन तक पहुँचने का रास्ता लगता है. दिस शुड बी ब्रोकन. आई एम टेलिंग यू, अब वक्त आ गया है कि गे लोग आके ये सब रोके, इन लोगों को एंटरटेन करना छोड़े, क्योंकि जब उनकी वहाँ पे मार पड़ेगा ना तब उनको रियलाइज़ होगा
then they will realize why they should respect gay people and not use them as a sex toy. The problem is with a lot of bottoms, they want to be used as a toy. They say कि मुझे रंडी बना के छू दो, right? That's what many of you say, right? Even in role play, you say that. Use me, rape me, make me slut, make me whore, I am your bitch. मुझे कुतिया बना के करो. These are the words that I often see in my 10 years of experience online and social media. See, this is your personal life. If you enjoy that, do that, but do not perpetuate a stereotype कि यही है, हर किसी को यही चाहिए. नहीं, हर किसी को ये नहीं चाहिए. There are people जिनको सेक्स से ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है. अगर तुम्हारे माँ बहन के बारे में कोई बात करे, सबसे पहले जाके तुम उसको थप्पड़ मारो, फिर जाके बोलो कि मुझे सेक्स में इंटरेस्ट नहीं है. तुम बोलते हो हाँ चलो मैं दिखा दूंगा, बट पहले तुम्हें मुझे ठोकना पड़ेगा. क्यों? नहीं करोगे सेक्स, उसका अगर नहीं लोगे तो मरोगे क्या? फिंगरिंग करो और हिला के सो जाओ. दैट्स बेटर. सो आई वांट टू से दिस अगेन एंड अगेन. जो अपने आप को प्योर टॉप्स बोलता है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारी औकात नहीं है गे कम्युनिटी में रहने की. और जो इन लोगों को एंटरटेन करता है, प्लीज़ एंटरटेन करना छोड़ो. अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचो. सेक्स तुम्हें कोई खिलौना नहीं हो कि तुम्हें आके ठोक के चला जाएगा, फेंक देगा एक रंडी की तरह. उन लोग को भी रिस्पेक्ट होता है, तुम लोग को रिस्पेक्ट भी नहीं है. डू इट. इग्नोर देम. ऐसे बंदों के साथ सेक्स मत करो. भले थोड़ा कम हैंडसम बंदा मिले, थोड़ा कम साइज वाला बंदा मिले, सैक्रिफाइस करो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए. स्टॉप गेटिंग यूज्ड, स्टॉप गेटिंग प्लेड बाय पीपल. एंड लेट मी टेल यू दिस टू ऑल प्योर टॉप्स हु आर वाचिंग दिस. टाइम है, बदल जाओ. थिंक अबाउट us as an equal person, a person who has a feelings, who needs satisfaction, same satisfaction. अगर नहीं दोगे तो हम आपको कुछ नहीं देंगे. हम आपको निकाल के फेंकेंगे एक कचरे की तरह from this community, and you deserve that. All those tops who may not be pure tops, but वो बोलता है कि तुम मुझे suck करो, I will not ream you, it's disgusting. I won't say this to all bottoms. It's only suck that guy if he reams you, because that's equal joy. If he is not able to ream you or if he is not able to suck you, do not suck him. If you find it disgusting, there are some people say मुझे किस करने में मज़ा नहीं आता. क्यों? लड़कियों को किस करता हूँ मैं बस. Why? हम क्या गंदगी से हैं? हम क्या पिग्स है जो कचरे में खेलते हैं? हमको किस नहीं कर सकते. फक कर सकते हो बट किस नहीं कर सकते. Why? करना है तो सब करना पड़ेगा, वरना वो भी नहीं मिलेगा. ऐसे बंदों को राइट टाइम पे ठोक के निकालो इमोशनली, तभी सुधरेंगे. उनको ब्लैक लिस्ट करो, ऐसे बंदों को इग्नोर करो, तब उनको रियलाइज होगा. आई हैव कम अक्रॉस सच पीपल. मैंने पहले ही क्लियर किया, ये करना है कर सकता है, ठीक है, नहीं करना है तो निकल जा. काफ़ी लोग निकल के गए, फिर आफ्टर अ कपल ऑफ मंथ्स दे केम बैक टू मी एंड आई मेड देम ऑल डू दैट एवरीथिंग इक्वल विच दे फाइंड डिस्गस्टिंग बिफोर. या डू इट. आप भी कर सकते हो. सो टॉप बॉटम वर्सेटाइल, इसके आगे जाओ. एक इंसान बन के अपने आप को ब्रांडिंग मत करो कि मैं टॉप हूँ, मैं अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करता हूँ, मैं बॉटम हूँ, मैं अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करता हूँ. फिर यही बंदे सोशल मीडिया पे आके सालों साल सेक्स ढूंढते हैं. फिर आफ्टर सम ईयर दे रियलाइज कि मेरे फ्रेंड को बॉयफ्रेंड मिल गया, सबको बॉयफ्रेंड्स मिल रहे, सब रिलेशनशिप में, बट आई डोंट हैव अ रिलेशनशिप. देन दे क्राई, एवरीबडी वांट्स सेक्स, नोबडी लुक एट मी, नोबडी डेट मी, नोबडी वांट्स टू बी इन लव विद मी. व्हाई? हाउ कैन दे एंड व्हाई दे वुड बी? Because all these years you represented yourself like a slut and a whore who wanted sex all the time, and now you are crying because you want love suddenly because you felt you are so lonely in life. तुमने अपनी ब्रांडिंग एक सेक्स प्योर बॉटम प्योर टॉप ऐसे बना के रखी दुनिया में. अब तुम सोच रहे हो कि तुम लोग सीरियसली ले. Nobody will take you for that. Remember, branding is very important. How you brand yourself. Never bring your sexual position when you introduce yourself. ये सब चीज़ें बाद में आनी चाहिए. अगर जो बंदा टॉप बॉटम चीज़ें स्टार्टिंग में लाना, समझ लो कि उसकी औकात एक रात की है बस, उसके साथ तुम सपने मत सजाओ. सो रिमेंबर, ऑलवेज ट्राई टू डेट पीपल हु लाइक हु कैन गिव यू इक्वल जॉय. जो आपको और आपके फैमिली को देख के आपके साथ सेक्स नहीं कर रहा, आपके मम्मी और बहन को देख के सेक्स नहीं कर रहा, वो आपके साथ सेक्स कर रहा है, इज्जत से सेक्स कर रहा है और आपको रिस्पेक्ट दे रहा है. Top and bottom is not about how good man or how amazing woman you are. It's about how better a man you can be. यार सबसे पहले इंसान बनने की कोशिश करो, देन उसके बाद कुछ बचे तो गे बाइसेक्सुअल स्पेशलाइजेशन है उसमें अच्छा बनने की कोशिश करो. उसके बाद भी कुछ थोड़ी हिम्मत और टाइम और करेज बचे ना, तो फिर टॉप बॉटम के बारे में सोचना. ओके, तो दैट्स ऑल ऑफ for tonight. I know I get very panicked, not panicked but angry, because I am actually angry when I talk about this, because ये सारी चीज़ों देखता हूँ और मेरा दिमाग सटक जाता है. बट
ये सारा गुस्सा एक्चुअली तुम्हारे में आना चाहिए, बिकॉज दिस हाउ यू शुड ट्रीट टू दिस पीपल. वॉच माई नेक्स्ट एपिसोड, द कपल ऑफ मोर एपिसोड्स रिमेनिंग, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट when it's moving on to a future life. Take care, stay at home, be at home, take care of yourself.